ऑलरेडी उचित झालेला आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही आणि हा जो प्रोग्राम आहे हँडओव्हर करतोय राम टेके साहेबांकडे. थँक्यू. सर्वप्रथम आपल्या समाज कार्मिकांना विनम्र अभिवादन. आणि आता मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो त्याआधी आता सरांनी विचारलं, नॉर्मली हा मिक्स मोडमध्ये असतो तर मॅक्झिमम मराठी लोक इथे आहेत असं मी ॲझ्युम करून मराठी इंग्लिश आणि एखाद्याला समजलं नाही तर क्वेश्चन आन्सरमध्ये पुन्हा तो प्रश्न किंवा जे काही क्वेरी असेल ते विचारता येईल. आणि हा कार्यक्रम थ्रूआउट इंडियाच ऑनलाईन आहे, त्याच्यामुळे मधामधात हिंदी पण येईल कारण काही क्वेश्चन हिंदीमध्ये पण विचारले जाऊ शकतात. ओके, तर वन्स अगेन ॲज अ मेंबर ऑफ दानाई मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. तिथे स्लाईडवर कोण नसतो. Next slide, please. Sir, next one. Sir, so today we are talking about undergraduate, म्हणजे BE BTech admissions to NITs, National Institute of Technology, IITs and IIITs plus government institutes which are governed by JEE admission process. Okay, next please. This is the disclaimer. This is the general guidance and user will be solely responsible for the losses, damages incurred as a consequences of the use of the information to follow. User must see the official website or document before undertaking any activity or procedure of admissions. Neither the author or his associate will be held responsible for any kind of a loss or damages whatsoever in nature as a consequences of this guidance. म्हणजे सांगायचा अर्थ आम्ही तुम्हाला माहिती देतो आहे, त्याचा उपयोग करा किंवा नाही करायचा हे तुम्ही ठरवायचं आणि उपयोग केल्याने नुकसान झालं त्याची संपूर्ण जबाबदारी तुमची राहील, हे नोट करा. त्याचं कारण डॉक्युमेंट्स आर कंटिन्युअसली अपडेटेड. आता तुम्ही 4 तारखेचं ब्राउझर जे अपलोड झालं होतं लगेच 10 तारखेला ते रिवाईज झालं, कदाचित ते अजून इन बिटवीन रिवाइज होत राहील. त्याच्यामुळे ही इन्फॉर्मेशन मी जे आज देतो ही 10 तारखेच्या ब्राउचरच्या नुसार आहे. कारण ह्या ज्या ॲडमिशन्स आहेत त्याच्यात कॉम्प्लेक्सिटी खूप असतं आणि त्याच्यामुळे कोणी कोर्टात जातं, कोणी रिप्रेझेंटेशन देतं, कधी कधी मिनिस्ट्रीकडनं डायरेक्टिव्ह इमिजिएटली येतात, त्याच्यामुळे ते बदल करावे लागतात. सो द थिंग इज next please. So we'll start the process. Okay, so first we will see who are eligible for admission process for NITs, IITs, IIITs and JFTS, government funded technical institutes. Okay, first you must qualify in JEE means. Qualify चा अर्थ काय? What do you mean by qualify? Qualify means you should have got a rank. That is a qualified for JEE means. Okay? हे फार महत्त्वाची आणि इट इज अ इसेन्शियल कंडिशन, इसेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे की त्यांनी JEE मेन क्वालिफाय केलं पाहिजे, म्हणजे JEE मेनचा रँक त्याला आला पाहिजे. He must have got the rank in JEE main. Then only he can register for further processing. Okay? There are different types of papers which NTA, National Testing Agency, conducts now. Earlier there was only 2 papers, but now 3 papers are taken. Okay? Paper 1 is for BTech or BE or engineering stream. Paper 2 is for BR. Now earlier it was combined for planning also, but now it is separated. So we plan BR and BTech. All these processes are covered under this. Okay. Now minimum requirement is JEE main qualification.
Second is the 12th class examination. 12th class examination with percentage of mark. Aggregate marks are 75% for OBC and general category candidates, or even including EWS candidate. Clear? And for SC, ST and PWD from any category, the requirement is 65. तर SC, ST ला 65% ची गरज आहे आणि जनरल ला 75% ची गरज आहे. Other than SC, ST and PWD, everyone is required 75%. पण हे 75% म्हणजे बोर्डाच्या मार्कशीट मध्ये 75% नसतात. हे सगळ्यात आधी समजून घ्यायला पाहिजे. अजून भारतामध्ये तर होत नाही, पण परदेशातनं 12वी पास करणारे काही मुलं असतात. दो जेव्हा पास दॅट 12th एक्झामिनेशन आउटसाइड इंडिया, they may pass it with 4 subjects. Those candidates are not eligible for admission. 12th with minimum 5 subjects is essential criteria for admission to IITs and NITs and other institutes. तर 4 सब्जेक्ट घेऊन 12वी पास झालेला मुलगा ऍडमिशनला एलिजिबल नाहीये. ओके. आणि केव्हापासून 12वी कधी केलेली चालत नाही. यू मस्ट पास 12th examination in summer 22 or afterwards. March 22 or afterwards. But not applicable for IIT. IIT ला वेगळा. This is for NITs and triple IITs. Okay? For IITs, requirements are little bit different. Okay? So, how do you calculate the 75%? If I take the BTech condition, BTech course. BTech कोर्सचं 75% कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला घ्यायचं आहे फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स कंपल्सरीली, फिजिक्स मॅथमॅटिक्स कंपल्सरीली, अँड आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, टेक्निकल, व्होकेशनल, एनी वन ऑफ इट. ओके. प्लस 1 लँग्वेज अँड एनी अदर सब्जेक्ट अदर दॅन दिस वेअर यू गॉट द मॅक्झिमम मार्क्स. असं you have to do addition like this. Okay? And you have to convert the mark. जसं vocational 200 मार्काचं असतं, तर इथे ऍड करताना you have, before you take that subject into consideration, you have to convert the marks obtained out of 100 आणि ते ऍड करायचं. So physics, maths, chemistry plus chemistry or biology or vocational or technical plus 1 language. 1 language is essential. And any other subject. It may be another language also. That 1 plus 1 includes another subject. Anything which is examined by the board, not school examined. Clear? Okay. B plan, only mathematics is essential. You can take any other subject. For architecture, it is physics, chemistry, math plus any other 2 subjects. Their language is not compulsory. Even B planning, language is not compulsory, but for BTech, language, maybe regional language or English, is compulsory. So you have to do addition like this and get that 75% or 65% marks. समझलो? So it is not the board 75% or 65% which is indicated in mark sheet. It is to be calculated like this. Now there is one more question. हैदराबादला कोण कोण गेलो होते यातला क्लास लावायला? नाही. मग तो प्रश्न सोडून दे. जिथे where the board considers both the marks of 11th and 12th standard in the mark sheet, those percentage are not considered as a valid percentage. You have to take only 12th class examination marks, not the 11 plus 12 combined. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ज्या बोर्डामध्ये 11वी 12वीचे मिळून मार्कशीट बनते त्या बोर्डामध्ये हे 75% किंवा 65% कॅल्क्युलेट करताना फक्त 12वीचे मार्क्स घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट. नाउ द लास्ट बॉटम वन, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी. कारण NITs आणि ट्रिपल IITs चे ऍडमिशन जे आहे त्याच्यामध्ये काही प्रोसेसेस केलेले आहेत. काही सीट्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या सीट्स असतात, ते आपण नंतर पाहू. तर एक प्रश्न तुम्हाला येईल, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी. याच्यामध्ये काय होतं
की ज्या डोमेस्टिक जसं म्हणतो आपण की आता महाराष्ट्राचा मुलगा आहे त्याने हैदराबादला जाऊन 12वी दिली, 12वीची परीक्षा तिथून पास झाला, तर त्याचं स्टेट होम स्टेट किंवा 12th पासिंग स्टेट ऑफ इलिजिबिलिटी जे राहील ते तेलंगणा किंवा आंध्रा म्हणू आपण. तर तुमच्या नेटिव्ह रेसिडेन्सशी काही संबंध नाही स्टेट ऑफ इलिजिबिलिटीचा. स्टेट ऑफ इलिजिबिलिटी म्हणजे ज्या स्टेटमधनं 12th पास झालं ते स्टेट. ओके, so state of eligibility means that state from which you have passed your 12th examination. Okay, board 9 minutes any. Location of the institute where you took admission in 12th, that is important. Clear? Next please. For IITs the calculation method is different and requirement is also different. Those who passed 12th in 22 they are not eligible for admission to IIT. 22 are earlier. 2022 आधी ज्यांनी 12वी पास केली आहे ते आजच्या IITच्या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये घेऊ शकत नाही. Only those who pass their 12th examination in summer 23 or summer 24, only those are eligible. Clear? And how to calculate 75%? Like BTech in NIT, not like BTech in NIT. It is PCM is compulsory in IIT calculations. PCM plus one language plus any one subject. That way you have to consider the subject and calculate the 75%. 65 depending upon your category. Or if you are not satisfying this requirement, third option is available there. What is that? You should be among the top 20 percentile of your board in your category. In your board. Okay? So that is there. One more point you note down. 20 percentile of general category is a 380, 370, something like that. You consider it as a 370. What is the percentage out of 500, 370? It is something like 74, barabar? It is something like 74. Requirement is 75, 375. But even if you are 370 and if board says that 370 is 20%, 20%, he is eligible for admission. Azun ek point, one more point is there. Definitely for reserved category or PWD candidate 65% is there. Okay? In some boards it is possible that even general candidate having less than 65% but falling under 20 percentile is eligible for admission. Clear? Say it is 298, just example I am taking, 298, around 60%. It is 298 for general candidate, okay? But let us say you are a ST candidate, there the 20th percentile is 302 marks. Then you cannot claim that 20 percentile. ST candidate cannot claim. Though the marks are more than general category, you cannot claim eligibility because you are taking benefit of reservation. So that is the basic. I hope you have understood. You have understood what is the difference between these two. How to calculate. So 20 percentile you have to check for your own category in your own boards. Other may have different value. So that is the requirement. So after doing this, if you are eligible under all these circumstances, then only you can register. Okay? So for registration, you have to go to the website. ये सगळ्यांना माहिती आहे. josa.nic.in. Okay? josa.nic.in. Okay? After putting it in the address bar, you will see this screen. Okay? This screen will appear. Okay? There are a lot of information available on this screen. Next screen. Now you
see here, there is a link called as e-services. E-services. Okay? E-services. Under that, there are, this is important so far as student is concerned. So, for the student, these are the services available. Participating institute, sheet matrix, and opening and closing rank. Okay? And also, this is the place where you can get the 20 percentile cutoff marks. Okay, this is the link. 20 percentile cutoff. It may not be visible to you, but you can just see. So there you click, you will get complete file and cutoff for both the years. 23 and 24 will be available. Okay. Then next. Now from e-services I enter to participating institute. Okay. Under this you have three links: participating institute, sheet matrix, and opening and closing rank. The first one is participating institute. I click that and I got this thing. So here you click. Even if you click here, same thing opens, but this is the link available. After clicking this, next, you will get information about the participating institute. There are around 121 as on date, but it will get added. Okay, so around 121 institute participate होता है त्याच्या आणि mainly it is IITs, NITs, triple ITs and other central institutes. So if you see this second, I am just putting my this layer. So here it is the Indian Institute of Technology, Bombay. I have written it in a little bit bold. So first one, here you get the contact person's address, their emails and all those things. You can contact them in case of any doubt. However, here you find there is a view, VIEW, blue colored link. If you click this, see what happens next. As soon as you click this, you will get the information about the institute, everything, hostel, admission fees, other information like bank area, there is a theater is also there or not, what are the facilities, swimming pool area, recreation club area, everything will be available there. So you click this and read that information. That gives you complete idea about that particular institute, and even after that if you fail to understand something, you can contact to the contact person. Both mails and phone numbers are available. Okay, next. Now IITs are running since last 3-4 years. They are running one very good program. As soon as you get the result, advanced result, they start doing this. They call it as an open house. The link is available here. Open house. Okay? And almost every IIT runs this program. Actually, I think IIT Bhilai and many others, but mostly you up to 18th you will find, you just click the link and you get complete tour of the campus, complete information, and even they provide you the facility to interact during that session, so you can do it. So it is for अभी मुझे लगता है बॉम्बे का हो गया, you know that Bombay is lower, but many others, even almost 10 IITs are still remaining, 10-15 IITs are remaining. So you can just click and get, just log into that link and you get it. You can interact, you can ask anything about that. जो भी छोटी सी चीज पूछनी है आप पूछ सकते हो to that person. Next. Now we talk about the sheet matrix, which is again there under the e-services. So sheet matrix is, you will get this. After clicking that sheet matrix link, you will get this information. You have to choose institute type. Institute type means whether you want IIT, NIT, triple IT, because there is a lot of information cannot be accommodated in single server. So the server linking is there. So here it is IIT, then select institute. Under IIT you select particular institute and select program.
select program means you can select branch wise or complete courses run by that institute. So here you get information something next. So here I have clicked NIT and VNIT, and it is a chemical engineering course. So you will find how much seats are there for open PWD, general, EWS, EWS, PWD, SC, ST in each course, branch wise, and you see there are two columns. So first one is for Maharashtra because it's a Maharashtra institute. That means first one is for home state, their own state, and below that you will find other than Maharashtra means national quota, and you will get the distribution. It is equally distributed. One seat difference may be there because the fraction is either added last year. If it is added last year to the state quota, next year it will be added to the other state. So that way that matrix is maintained. Clear? So this is how you can get how many seats are there in each institute, in each category, in each branch. Next. Now again I am coming to the IIT Bombay. Okay. Okay, that seat you can get, but this is not that screen. It is for the under e-service. The last link is ORCR, opening and closing rank. So this is that screen. So under that, almost I think they have put 7 year data. Last 7 years data is available to you, almost. And first you have to enter of which year you are interested in. Then next is which round. All the rounds, 6 rounds normally they conduct. So all data is available there, and institute type. Again, I have chosen IIT Bombay just for looking at what is the opening and closing rank under IIT Bombay in electrical engineering 5 years course. Normally the BTech is 4 years, but you will find electrical engineering 5 years and 4 years both are there. They call it as a dual degree. If you complete 5 years, you get MTech as well same time. Okay? So that is there. And a particular category. I have chosen SC. Okay? So here, all the seats are all India. All India seats. There is no quota like Maharashtra for VNIT, Maharashtra and other. It is for all India seats. So AR, and I have taken it for scheduled caste, SC. And you see here under the gender column, gender neutral and female only. So gender neutral means both girls and boys are eligible under that. So both can see what is the opening and closing rank, and below that there is a female only. So this is the rank of that particular category which is uplift, which got admitted, which female got admitted to that particular course in that particular branch. So this is for girl student only, opening and closing. And what at top is for both boys and girls. So that is there. So female only means only for girls, gender neutral means for both. Next. And this particularly I have clicked. Again, IIT Kharagpur, some course like applied geology. See, IIT runs, these central institute run all kind of courses, MSc, BSc, MTech, BTech, LLB, all those managements, and some IITs are also doing medical courses, they are starting. So it is not only engineering institute now. Okay? So here, just to clarify about the rank, you see, this is a female only quota and it is applied geology in IIT Kharagpur. So next to that you find the letter P. It is a preparatory rank. It is a preparatory rank. This is not normal SC category rank. So even this, that means what does it indicate? All SC candidates who have applied for geology got admitted, and even after that seat remained vacant, and therefore preparatory student got admitted to that particular course. Clear? Okay? So 356 and
56P. They are entirely different and there is a huge difference between the ranks. Clear? So this is the next. If I take the home state and OS quota, same thing, gender neutral and female, HS and OS. Okay. So suppose a student passed his 12th class examination from Maharashtra state of any board, then he will be considered eligible for home state quota in VNIT. Suppose a student from Nagpur went to quota and passed his 12th from Rajasthan. So for him, Rajasthan, that is NIT Jaipur, will be the home state quota, not this. Clear? So it is based on your 12th passing state. Clear? Then other state means what happens here, in almost all the courses 50% division is there for home state and other state. So the Maharashtra candidate cannot claim other state quota in VNIT, because sometimes it may get confused, because somebody from other state may get admitted to computer science having lower score than the Maharashtra candidate. So the clarity is that this is for other than Maharashtra state and this is for Maharashtra state. Clear? Next step. Now after registration, how to start registration? Again you have to log in. To that you find, click here for registration. That link is there. एक मिनट सर, थोड़ा मागे मागे एकदम 5-6 स्लाइड पास अजून मागे अजून हाँ. See here there is a candidate activity board. So here online registration and choice filling. If you click here, click here, some screen will available. So these things we will discuss. See, you cannot make correction in some fields like name, parent name, 12th board, birth date and category. Okay? स्कोर कार्ड में गलत नाम आया वैसा ही एंटर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेरेंट का, don't try to change it. It won't accept your registration if you try to change or add on. Then what you can correct is eligibility state. गलती से जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र कैंडिडेट राजस्थान गया था, वहाँ से 12वीं किया पर उसने महाराष्ट्र करवाया, तो he can change it. Gender. Okay? Because there are some institutes which are still in India, they are admitting only girls or only boys, which are included in this admission. So gender से आपको करेक्ट कर सकते हैं. Nationality, this is almost everybody is Indian here. So कोई है बाहर से? नहीं, no problem. छोड़ दो. 12th passing place. So that is a sometimes we do mistakes like we put Nagpur instead of quota and all those things. So that is there. So only these 4 fields you can change, but the upper ones you cannot. Okay. Second thing, category. This is very important so far as we are concerned. Okay. In Maharashtra, there are so many categories where reservation is applicable. Okay. SC, ST, VJ, and even NT, ABC, and all those things, OBC, and again EWS and all those things. Whereas central government has only basically 3 categories plus EWS. So all these are included. All means I can't guarantee that every caste will be included. So what you have to do for NT, VJ and OBC, you log into this website. Okay, and this is the main website, www.ncbc.nic.in, and after logging into there, how to check your account, that I will tell you. Similarly, that social justice, उसको थोड़ा सा हाँ, social justice for SC and tribal.nic.in for ST. You click those links, make sense.
Okay? So, okay. So new candidate registration link is there. First time you have to click here. After registration, you have to fill this. Okay? So new candidate registration tab. Chalo, next. So here you have to put the main application, JEE main application number, candidate name, mother's name, and date of birth, and this code. Captcha you have to put in. After submitting this, you will get one OTP on your mobile as well as email, and later on, you have to follow the procedures for setting passwords and all those things. Okay. Now I was talking about registration. Okay, that it is a very easy process. You don't need any help there. अभी अपन ने जो NCBC के बारे में बात की थी कार कैटेगरी का, because particularly Maharashtra there are so many. So problem is you have to log into this website. Log into this website. After logging into the website, there is a link, central list of OBC, and below that there is a state list, A to Z. All the states are covered there under. Okay, next. Now I have selected Maharashtra, and under Maharashtra there are almost 300k castes are included. Okay, like this. Now next. See here, you have to see the spelling of your category or caste basically, and you don't इंटरप्रेट करके ये गलती से यहाँ प्रिंट हो गया या आज बाद में लग गया, ऐसा नहीं है. It should match the letters, words as it is, comma, dash, some. Because it is a list, it is scheduled. Okay, उसमें कोई गलती नहीं होती है. Okay, so you have to say, like just example, Lewa particularly OBC candidates, then it is Lewa Patil. So you check if in the list it is LEVA, then LEWA is not acceptable. Okay? वो थोड़ा सा भी करेक्शन है तो उसके लिए उसका GR अटैच होता है यहाँ पे. ये जो है पूरे अटैच्ड है, कौन सी GR से किया गया है. खैर वो अपने को देखना नहीं है उतना, अपने को सिर्फ स्पेलिंग देख के कंफर्म करना है. ठीक है. कुछ आज के बीजे के कैंडिडेट होंगे, उन्होंने कुछ मिल नहीं रहा करके ओबीसी डाल दिया होगा. So there will be a problem for them, at least for the first allotment. Clear? तो आगे क्या प्रॉब्लम होता है हम बताएंगे. चलो सर, नेक्स्ट. This is for ST. Again you have to click your state and get the list. अभी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं. So you will see everything. Just you see, you got a certificate. जब हमारा बच्चा केजी में जाता है तभी हम सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं मोस्टली. कास्ट सर्टिफिकेट या नर्सरी में या अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड तो मिनिमम है, हम तब सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं और वो सर्टिफिकेट हमारे पास रहता है तो वी अज्यूम दैट कि हम आज भी उसका एडवांटेज ले सकते हैं. बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. जस्ट आई विल टेल यू, देयर वाज सम कास्ट एट द 12th पोजीशन एंड इट इज ओमिटेड आफ्टर सम इयर्स. तो आज की डेट में आपकी कास्ट इंक्लूड है क्या एचसी में, ये देखना बहुत जरूरी है. तो ये जरूरी नहीं कि मेरे पास है, मेरे पापा के पास थी तो मुझे भी मिलेगी, ऐसा नहीं है. तो यू हैव टू सी देयर इज, दैट्स व्हाई दिस इज ओमिटेड. सो दिस कास्ट इज नाउ नॉट एसटी, इट इज ओमिटेड. इट माइट गॉट इंक्लूडेड maybe in OBC or maybe in general list, but from ST it is removed. Next, okay? So I hope you have understood अभी तक का सब जो कुछ था. Next is you have to fill single form for all these 121 institutes. Single form, single registration. 23 IITs
31 NITs, 26 triple ITs, and 40 plus government institutes. Central, state, some states are also accepting JEE-based admission. Next. Okay, and you have to fill the choice. Choice means VNIT electrical. That makes one choice. Okay, and you have to fill single choice form for IITs, NITs, triple ITs, government institute for BTech, BR, 5 years, 4 years, B plan. All these single choice list is to be filled in preferential order. So यही सबसे बड़ा करना पड़ता है. Okay, and there is no limit like state में होता है, state CET based में 300, 100 ऐसा कोई लिमिट नहीं होता. And there is a auto system. जब आप भरने जाओगे तो पता चलेगा कि if there is restriction, वो पॉपअप बताता है. Here girls students are eligible only, or here you need English with 50 parts, something like that. या ये सब चीजें ये restrictions पे देखना चाहिए before opting for that choice. You must check restrictions. Okay? और ये CET में जैसे आप 2 बार 3 बार चेक कर सकते हो, एक ही बार भरना है और ये पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए एक ही लिस्ट रहेगी, बाद में कभी चेंज नहीं हो सकती. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके बाद आपको चॉइस सेव करना है, लॉक नहीं करना है. अभी उन्होंने लॉक बटन अभी से वो एक्टिव नहीं करते बिकॉज मेनी स्टूडेंट वो आखिरी के 1-2 दिन में लॉक से चॉइस लॉक का बटन एक्टिव करते हैं. अभी सेव करना है. सो डोंट लॉक द सिस्टम, डोंट लॉक योर चॉइसेस, जस्ट सेव इट. वो लिस्ट अपने आप अपडेट कर सकते हो बाद में. एंड अबाउट द मार्क अलॉटमेंट, देयर इज मच मतलब मिसकंसेप्ट है. मार्क अलॉटमेंट का मतलब अलॉटमेंट नहीं है. उसका मतलब यह है कि अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या चॉइस भरा है उनके हिसाब से आपको ये मिल सकता है और वो बदलते जाता है. और मैं एक बात बता दूं, बहुत अच्छे लड़के जो होते हैं वो आखिरी के 2 दिन में चॉइस भरते हैं और वो चॉइस आपको पता भी नहीं चलती है. तो ये मॉक अलॉटमेंट इज ए फेक अलॉटमेंट. इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी तक लोगों ने ऐसा किया है. बट you will see that if you compare the mock allotment with the actual allotment, कोई मैच नहीं है. It is like वो exit poll से भी खराब है. Okay, so don't lock. और यदि गलती से last but one जब होता है तो there is a provision, but वो provision आपको बड़े fast active करना है, पर वो avoid ही करो क्योंकि वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, OTP आएगा और विद इन टाइम फ्रेम यदि नहीं आ पाया तो फिर प्रॉब्लम होता है. इसलिए बेटर टू कीप द चॉइसेस सेव, नेवर लॉक. आप फाइनलाइज करते रहो बीच बीच में जब भी करना है. नेक्स्ट. सो नाउ अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, यू सी देयर द रिस्ट्रिक्शंस एट इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक प्रोग्राम. इसमें दोनों मिलते हैं, IITs का भी और NITs का भी. तो आपको देखना है जैसे NIT रायपुर में दे कैन नॉट फॉर माइनिंग के बच्चों को PWD को अलाउ नहीं करते फॉर फिजिकली वीक स्टूडेंट्स. लाइक IIT खड़गपुर कलर ब्लाइंड बच्चों को अलाउ नहीं करती. तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखना है. इंग्लिश होना जरूरी है कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ इंस्टीट्यूट में ओनली गर्ल्स आर एलिजिबल. सो ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस चेक करके डाउनलोड करके देख सकते हो. नेक्स्ट. ओके, सो जब भी आप अभी ये प्रिंटिंग मोस्टली इट इज इन PDF फॉर्मेट आप सेव कर सकते हो चॉइसेस, वो सेव करके रखना चाहिए. एंड दिस आर द चॉइस, सम टिप्स. ओके, ये टिप्स है. यू लीव द चॉइसेस यू लाइक, द ऑर्डर इन विच यू वांट टू गेट एडमिटेड. हो सकता है आपका राउंड 5000 हो SC में एडवांस का, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन IIT बॉम्बे कंप्यूटर 4 ईयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस BTech 4 ईयर, आप लिखो डोंट लुक इनटू दैट रैंक, पहले मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से लिस्ट बना लो. ठीक है, और बाद में ये देखो
कि मुझे कहाँ मिल सकता है, वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से अंदाजा आ जाएगा. नॉर्मली इट इज हार्डली 5% वेरिएशन एज फार एज रैंक इज कंसर्न. ज़्यादा बदलता नहीं है, बिकॉज सम ईयर पेपर इज इजी, सम ईयर इट इज हार्ड, सम ईयर बच्चे पढ़ाई नहीं करते. तो दैट वेरिएशन इज नॉट मच इन द रैंक, हार्डली 5% वेरिएशन विल बी देयर. 10-15 बच्चों का इधर उधर होता है. सो यू कैन इजीली चेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक from that screen, e-services, and everything is available, branch wise, round wise, category wise, male, female, मतलब gender neutral, everything is available. So you can check it. Already we have seen how to check the rank. ठीक है, next एक और होगा. So about home state quota and other state quota I already spoke. If you are past 12 from that state, you will be treated as a home state candidate for that particular NIT. For other NITs, you will be treated as a other state student. Okay? And reservation is applicable in both the cases. All type of reservation, SC, ST, OBC, EWS, PWD. In IITs, all the seats are all India basis. There is no state type differentiation. And reservation is also applicable, all category. Next. Now, after getting allotment, you are filling choice और एक हो रहा है. Okay? Actual allotment which will be there on 28th for the first round. 20 तारीख को आएगा. उसमें इधर हाँ कर. Okay? So after you get the allotment for the first time, okay, it may be in the first round, it may be in the third round, and it may be even in the last round. So when you get allotment for the first time, you have to log in, accept the seat, select the option. Out of these three options, choice is different, option is different. So you have to select any one of these options depending upon your requirement. The rules are also there. So you have to select one of the option, and then you have to upload the document and you have to pay the fees. There are a lot many options are available to pay the fees. And after this, in that slot of round, the officer will raise the query, may raise the query. If he finds that some document is not correctly uploaded or there is an issue with that, so you continuously log into your that student login और बार बार चेक करते रहो. दिन में कम से कम सुबह एक बार और शाम को एक बार. ठीक है? और जैसे क्वेरी रेज होती है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो. नेक्स्ट सर. If you do not respond to query within the time frame, भले पैसे भर दिए हो, क्या होगा? You will be thrown out of process. भले आप IIT के मिलने के चांसेस थे, आप कहीं नहीं मिलेगा. अगले साल फिर से मेन से स्टार्ट करना पड़ेगा. It is like your UPSC preliminary mains interview. It is like that only. So जैसे ही क्वेरी रेज होती है, आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करें. दैट टू टाइम लिमिट. ओके? एंड तो एक ये आपको करना है और आप ये देखें कि क्या मैसेज देखना है, सीट कंफर्म. आपके लॉगिन में जब सीट कंफर्म आ जाए तब आप चाय पीने जा सकते हो. तब तक आपको ये कंटिन्यूस चेक करते रहना है. अभी अलॉटमेंट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड को देखते रहिए. नेक्स्ट. Now about the options. See, once you accept the seat, the system will ask you for the option. 3 options देते हैं. 3 options are there. Freeze, float and slide. Freeze means अभी जो मुझे मिला है, that is my final. मुझे आगे के प्रोसेस से बाहर निकलना है. ये कंडीशन कंफर्म करना है. So that is the meaning of freeze. उसके बाद एक float होता है. एक float में क्या होता है कि आपको 8th नंबर का चॉइस का सीट मिला है, लाइक VNIT इलेक्ट्रिकल.
उसके ऊपर आपके IITs है, आर्किटेक्चर है, NITs है। तो अभी मुझे फ्लोट करने का मतलब क्या है, 1 to 7 का रीप्रोसेसिंग करना है, 8 तो रिटेन रहेगी। हाँ, और जैसे 1 to 7 का मैंने ऑप्शन दिया, दैट इज अ फ्लोट, और उसमें कुछ मिलता है तो मेरा 8 जो मिला था वो गायब हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, उसका थर्ड ऑप्शन है स्लाइड। इसका मतलब क्या, जैसे मुझे V90 में इलेक्ट्रिकल मिला है, पर मुझे कंप्यूटर साइंस का मेरा एक चॉइस बचा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर साइंस के 2 चॉइस बचे हैं, मुझे उतना ही प्रोसेस करना है, तो मुझे स्लाइड देना है। उसमें IIT या IIIT जो होंगे बच्चे वो प्रोसेस नहीं होंगे। सिर्फ V90 में आपको अलॉटमेंट मिला है, V90 के बचे हुए अपर चॉइसेस ही प्रोसेस होंगे, नीचे के चॉइस अपने आप सिस्टम डिलीट करती है, अपने आप निकाल देती है। ओके, और आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, बट देयर इज अ सीक्वेंस। यू कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू फ्रीज, ओके, फ्लोट टू स्लाइड, और स्लाइड टू फ्रीज। ये कब तक हो सकता है, लास्ट बट 1 राउंड, दैट इज द 5th राउंड फॉर NITs, बट फॉर IITs after 5th round is last for IIT, for NIT it is 6th round, so up to 4th round for IIT, and for NIT up to 5th round, because 6 is the last round. Clear? So that is there, and ये इसके लिए ऑनलाइन ही होता है, वो OTP, now it is like internet banking type confirmation, that's all. Thanks. और ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके रखो, अच्छा रहता है, कल कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो काम में आता है। ओके, और लॉक चॉइसेस यदि है PDF में तो वो भी रखो, क्योंकि ऐसे तो इस प्रोसेस में कभी हुआ नहीं है, स्टेट के प्रोसेस में 1-2 बार हुआ है कि चॉइसेस हमने भरे नहीं और हमको मिल गया, ऐसे भी कंप्लेंट आई है। तो ये रखा आपने, तो दैट इज बेटर फॉर योर। फिर एडमिट कार्ड चाहिए आपको पेमेंट का, जस्ट फॉर आइडेंटिटी पर्पस, और स्कोर कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चलता है एज आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए रहता है, OCI PR है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट आपके ब्राउचर में दिया है, किसी भी MBBS या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो बनवा के अपलोड करना है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट इसलिए लिखा है, यू कैन जॉइन, इट इज फॉर डेट ऑफ बर्थ। नाउ सेंट्रल बोर्ड इज पुटिंग डेट ऑफ बर्थ इन मार्कशीट, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड आर नॉट पुटिंग। और अभी आधार कार्ड पे यदि डेट ऑफ बर्थ है तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड, पहले नहीं था, अभी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और अदरवाइज यू कैन हैव ग्राम पंचायत और कॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड, पर नाम में फर्क है तो गलती से अपलोड नहीं करना, क्योंकि मोस्टली कैसा होता है, पहले तो नाम अलग लिखते हैं, स्कूल में अलग लिखते हैं। 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, बैंक चेक और पासबुक, ये बच्चे के नाम से होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, इसके मम्मी पापा का भी चलता है। ओके, बैंक चेक नहीं तो फ्रंट पेज पे व्हाट दे वांट इज नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, दीज आर द एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट पेज पे मोस्टली सभी बैंक प्रिंट करती है। अभी वो दो या बैंक ये दो, यदि मम्मी पापा का नहीं है चाचा का भी चलेगा, बट पैसे उनको जाएंगे, ध्यान में रखो। Photos is nowadays it is not that essential because they are verifying it not from photo. अंगूठा is more important. आपकी एग्जाम देते वक्त आपने जो अंगूठा किया वही अंगूठा रीमैच होता है while admission process last round में इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो अंगूठा मैच नहीं तो एडमिशन नहीं। ओके, देन कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें स्पेसिफिकली OBC NTPC जो लोग हैं हमारे, वो स्टेट का OBC सर्टिफिकेट नहीं चलता। ओके, वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। वो फॉर्मेट सभी, आप जो मेन पेज है ना होम पेज, उस पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट की एक लिंक दी हुई है, उसमें सभी फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है? तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट की सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, ये तो प्रॉब्लम ST के केस में भी नहीं आता मोस्टली,
एससी के 99% केसेस में नहीं आता, ओबीसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाइल वेरिफिकेशन, क्योंकि स्टेट का फॉर्मेट अलग है और सेंट्रल का फॉर्मेट अलग है। स्टेट की लिस्ट अलग है, सेंट्रल की लिस्ट भी अलग है, तो वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। वैसे ही ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का अलग आहे, स्टेट का अलग आहे। आपण प्रश्न उत्तर सगळं संपल्यानंतर घेऊ, फक्त लक्षात ठेवा। हा ईडब्ल्यूएस जो आहे याचा सेंट्रलचा फॉर्मॅट वेगळा आहे। इथे सगळं कन्सिडर होतं, फ्लॅट पासून जमिनीपासून तर पैशापर्यंत। स्टेटमध्ये पैसेच पाहतात, लक्षात आलं? तर ते त्याच्यामध्येच राहायचं। आणि नॉन क्रिमिलेअर ह्या ज्या दोन गोष्टी आहेत ईडब्ल्यूएस आणि एनसीएल, हे 1 एप्रिल 24 नंतरचं इश्यू झालेलं पाहिजे। इट इज व्हेरी इसेन्शियल, इट इज बेस्ड ऑन लास्ट फायनान्शियल इयर, सो टू बी इश्यूड ऑफ द 1 एप्रिल 24। ओके। आणि जे सेंट्रलचं सर्टिफिकेट आहे की नाही आपल्या जर ओबीसीचं ते बघायचं असेल तर तुम्ही हा वाक्य आहे का, recognized as a OBC as per Government of India DOPT-OM dated 8 September 93, recognized as per Government of India DOPT-OM dated 8 September 93। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हा शब्द महत्वाचा आहे। आपल्याकडे जे ओबीसी सर्टिफिकेट येतात ना ओनली स्टेट, क्योंकि वो लिंक बाहर भी अदर स्टेट वाले देख रहे हैं। So, for as far as this, how to ensure that you have got correct certificate, आपके पास ओबीसी का सही सर्टिफिकेट ये है, ये जानने का एक सिंपल तरीका है कि उसमें ये वर्ड देखिए, रिकॉग्नाइज एज ओबीसी वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी का ओएम 8 सितंबर 93 ऐसा लिखा है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके स्टेट के रिजोल्यूशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे, महाराष्ट्र हो या आंध्रा हो, वो स्टेट के रिजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं। ये तभी मिलता है जब आपकी लिस्ट आप वो सेंट्रल के स्टेट के लिस्ट में हो। एक तो ये करना है कि अभी आप कर सकते हो, 8-10 दिन में वो मिल जाता है। साथ में उसी के आजकल कंबाइन आ रहा है ओबीसी का भी और नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र दे हैव कंबाइंड इट एंड यू गेट अ सिंगल सर्टिफिकेट। सेकंड थिंग, अभी हम जाएंगे पीडब्ल्यूडी पे। ओके, पीडब्ल्यूडी पे इफ यू आर लेस देन 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड, लिस्टेड आपकी डिसेबिलिटी यदि 40% से कम है तो आपको पीडब्ल्यूडी का एडवांटेज नहीं मिलेगा, मिनिमम 40% चाहिए। अभी कोई स्टेट या जनरल हॉस्पिटल से वी गेट दैट सर्टिफिकेट एंड वी ट्रीट आवरसेल्फ दैट कि हमको पीडब्ल्यूडी का एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट माना जाता है। आपको आईआईटीज का अपना मेडिकल बोर्ड होता है, एनआईटीज का अपना मेडिकल बोर्ड होता है, वो सर्टिफाई करे कि इसकी एबिलिटी डिसेबिलिटी 40% है तो ही वो एक्सेप्ट होता है। और ये आपको कब करना है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आईआईटी में लेना है तो आईआईटी से भी लेके रखना, एनआईटी में लेना है तो एनआईटी के बोर्ड से भी लिखना, आपको दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे। अभी चालू हो गया है, आप अभी भी कर सकते हो, चालू हो गया है सब। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और मिनिमम 2 दिन पहले, आपको परसों जाना है समझो, एटलीस्ट 2 डेज एडवांस में आपको ये स्लॉट बुक करना है। नहीं तो आप बोलेंगे यार मैं इतनी दूर से हूँ, मुझे अभी दो, ऐसा नहीं होता। एंड दैट यू कैन बुक ऑनलाइन। ये इस साल से एक एडिशनल फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। एक दूसरा कार्ड है जिसको यूडीआईडी, आधार नहीं है, इट इज डिफरेंट। एक डिसेबिलिटी कार्ड, दिस इज ए डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड इट इज इशूड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मार्क स्टेट का नहीं। यदि वो आपके पास है तो आपको अभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट को, आईआईटी को, एनआईटी को जाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वाइल रजिस्टरिंग आपका वो कार्ड सिस्टम में ऑथेंटिक करना है, उसकी प्रोसेस होती है। मैं एक सिंपल बात बता दूं, आपके पास व्हाइट स्ट्रिप वाला कार्ड है तो वो पीडब्ल्यूडी नहीं होता है, आपके पास येलो या और उसमें वो एकदम इमीडिएटली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें मार्किंग है, येलो इज एक्सेप्टेबल, इट इज अबव, उन्होंने क्लासिफाई किया बिलो 40 अप टू 70 अप टू 80 अबव 80, ऐसा सब क्लासिफिकेशन है, उसी से कलर को। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कार्ड पे यदि व्हाइट मार्किंग है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। येलो है एलिजिबल है, आई थिंक देयर थर्ड ब्लू है या रेड है, आई एम नॉट श्योर दैट अबाउट 80%, बट येलो एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सो व्हाइट है तो बिल्कुल नहीं है। और वो यदि कार्ड ऑथेंटिकेट होता है आपके रजिस्ट्रेशन में तो आपको फिजिकली वो आज से जाने की जरूरत लेके पहले से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पर आपका ऑथेंटिकेशन यदि फेल होता है तो यू हैव टू रश एंड गेट दैट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। आपको जाना है आईआईटी या एनआईटी या दोनों, आप इंटरेस्टेड जिसमें हो वो करना है, ठीक है, ठीक है। एक है तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं, जब आपको एडमिशन मिलेगी तब आप भागोगे तो प्रॉब्लम है, उस राउंड 2 या 3 दिन का रहता है, तो उस समय एक प्रॉब्लम होती है कि आपको कभी ट्रेन मिस हो जाती है, कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता, कभी कुछ और प्रॉब्लम आती है। तो पहले से आप करके रखें, एक तो आप यूडीआईडी ऑथेंटिकेट करें या तो फिर ये फिजिकली करके रखें। यू आर नीड नॉट टू गो फॉर एवरी नियरेस्ट आईआईटी और नियरेस्ट एनआईटी का सेंटर चूज करें। आईआईटी आप भिलाई से चूज कर सकते हो, हैदराबाद चूज कर सकते हो, नागपुर वालों को नियरेस्ट। एनआईटी के लिए अपना नागपुर का एनआईटी चूज कर सकते हो। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आप स्लॉट पहले बुक करके जाए, नहीं तो टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। सो ये सब इतने डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होते हैं और उसके बावजूद भी वेरीफाइंग ऑफिसर एक एडिशनल क्वेरी रेज कर सकता है इफ ही इज इन डाउट कि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा गड़बड़ लगता है, दे हैव द राइट टू डाउट एनी डॉक्यूमेंट। और उसने बोला कि मुझे ये अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट भेज, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर सेटिस्फाई करना है, नहीं तो गई। नेक्स्ट, अभी सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब आपको जब सीट अलॉट होंगी वो एक्सेप्ट करने के लिए आप पहले एक्सेप्ट करोगे सीट, फिर ऑप्शन दोगे और पेमेंट करोगे, उस समय की ये फीस है। और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ई चालान, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यूपीआई, ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो आप ई चालान प्रिंट करके नियरेस्ट स्टेट बैंक में जाकर पे करो। चालान का एक इशू है, वो बैंक वाले तुम 11 बजे करो तो भी वो 7 बजे तक नहीं आता, आपने ये ध्यान में रखो। तो करना है तो एक दिन पहले करो, और जब तक अपडेट नहीं आएगा, अभी प्रॉब्लम हुए थे कुछ लोगों के पेमेंट के वजह से, तो अभी इस बार उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, यू कैन पे दिस फी इन एडवांस। ये 35,000 और 17,500 जो है, यू कैन पे इन एडवांस। आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले, आप पढ़ के रखो। यदि आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस होने के चांसेस लगते हैं, पर उसमें एक थोड़ी रिस्क है जो मैं बाद में बताऊंगा, ओके। और इसमें से आप जब एडमिशन लेने इंस्टीट्यूट जाओगे तो उसमें से ये प्रोसेसिंग फी जो है 5,000, ये माइनस करके बाकी के सब पैसे आपको एडमिशन में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट है, सब लोग पेन कागज निकालो और ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये एक चॉइस लिस्ट है, मैंने भर दी है, मैंने 10 चॉइसेस दिए हैं, और इसमें आप देखेंगे आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, आर्किटेक्चर भी है, इंजीनियरिंग भी है, ओके। सो ऐसा मिक्स्ड चॉइस लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। अभी मैंने पहले दिया आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, एनआईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एनआईटी दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, आईआईटी दिल्ली सिविल, इस तरीके की लिस्ट मैंने बनाई। दिस इज माय फाइनल लिस्ट, मैंने अपलोड कर दिया।
और वो लॉक हो जाएंगे। एक बात ध्यान में रखो, आप सेव करके रखोगे, लॉक नहीं भी हुआ तो सिस्टम ऑटो लॉक करेगी। इसलिए आप फाइनलाइज करते रहो लिस्ट, सेव करते रहो, लॉक नहीं भी किया तो भी चलता है, एटलीस्ट इन दिस सिस्टम। नेक्स्ट, अभी मेरा फर्स्ट राउंड में मुझे मिला NIT रायपुर मैकेनिकल। तो सिस्टम में से ये नीचे NIT रायपुर इज 8, तो ये नीचे के पूरी की पूरी लिस्ट सिस्टम से निकाल दी जाती है, पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी जाएंगी। आपने 500 भरे, सपोज यू हैव filled 500 and if you got 8, all 492 will be deleted from the bottom. 492 bottom choice will be automatically deleted. फिर ये नहीं होता कि मुझे तो वो चाहिए था या 10वां, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, so this is deleted and now you got NIT Raipur Mechanical as your choice in the first round. Next, so जैसे भी पहले बार मिलता है, it is NIT, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करो, मतलब you accept the sheet immediately, upload the document and pay the fees and continuously watch for query section till you see sheet confirmation. ओके, ठीक है। और यदि हम क्वेरी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाए या पैसा नहीं भर पाए या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए तो पूरे एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकाले जाओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। ठीक है, और अलॉट नहीं होता है तो नेक्स्ट अलॉटमेंट अप टू नेक्स्ट राउंड देखते रहो। नाउ मुझे अलॉटमेंट मिली थी NIT रायपुर मैकेनिकल और मैंने ये चॉइस दिया फ्लोट। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ही मैंने फ्लोट दिया, इसका मतलब 1 to 7 तक के मेरे चॉइस कंसीडर करने के लिए मैंने बोला। क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड में मुझे दिल्ली का IIT दिल्ली का सिविल मिला, तो मेरा ये मैकेनिकल रायपुर का अपने आप डिलीट होता है, सिस्टम पूछती नहीं है, और आप कितना भी रो पटको बाद में रायपुर नहीं मिलेगा। तो अभी मुझे IIT दिल्ली का सिविल मिला है। नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम है, आप सोचते होंगे कि मैंने रिपोर्ट कर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं। एक्सेप्ट पैसा the government is not taking money double from you, it is for complete process। आप IIT में लो या NIT में लो या कोई गवर्नमेंट में लो, एक ही बार आपको पेमेंट करनी है। अभी आपको पैसा नहीं भरना है, बट IIT का रिपोर्टिंग सेंटर और NIT का रिपोर्टिंग सेंटर, इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आपको नियरेस्ट IIT के, मतलब ऑनलाइन ही है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जिस IIT में एडमिशन मिलता है वही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है 99.99% केस में, स्पेशल केसेस में अलग हो सकता है। तो अभी आपको IIT का मिला है, आप सोचोगे कि मैंने डॉक्यूमेंट दिया, पैसे भर दिए, मुझे कुछ नहीं करना है अपने आप, ऐसा नहीं है। आपको IIT के लिए 2 बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, इसको ड्यूअल रिपोर्टिंग बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म में। तो JEE के लिए ड्यूअल रिपोर्टिंग कंपल्सरी, एक बार NIT मिला, दूसरी बार IIT मिला, तो अभी आपको 2 बार रिपोर्टिंग करना है, आपको पैसे नहीं देने हैं। ज़्यादा के डॉक्यूमेंट वो तभी मांगता है जब उसको एडिशनल की ज़रूरत हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो। कैसे, जैसे कि वो नेशनलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर IIT एंड NIT दोनों के लिए। आप इंडियन नेशनल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने OCI वगैरह कुछ भर दिया, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। या अपने कैटेगरी में, मतलब नेशनलिटी में कुछ गड़बड़ कर दी, उसको डाउट लगा कि ये तो 12वीं तो कुवैत से है पॉसिबली, तो आपको पासपोर्ट मांगेंगे एडिशनल ये, या OCI का डॉक्यूमेंट मांग सकता है IIT वाला, या NIT वाला भी मांग सकता है। तो इसलिए आपको दोबारा IIT में देना, और ये इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, IIT काउंसिल की अलग है, NIT काउंसिल की अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया। यदि हम ये रिपोर्टिंग नहीं करते तो
एनआईटी की भी सीट चली गई और आईआईटी की भी चली गई और आप घर बैठो एक साथ, ऐसा होता है। नेक्स्ट, अभी एक थर्ड अलॉटमेंट है। पहले मुझे मिला था आईआईटी दिल्ली का सिविल और मेरा ऑप्शन वैसा ही रखा मैंने, मैंने चेंज नहीं किया। अभी चेंज कर सकते हो इन बिटवीन जाकर, हमने चेंज नहीं किया। अभी क्या हो गया कि फॉर्चुनेटली मुझे वीएनआईटी का मैकेनिकल मिला, मैं फॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग है। फॉर्चुनेटली मुझे वीएनआईटी का मैकेनिकल मिला। उसका क्या इफेक्ट हुआ, आपका आईआईटी दिल्ली का सिविल चला गया, उसके नीचे के पूरे चले गए। मतलब आपको आईआईटी छोड़ के अभी वीएनआईटी का मैकेनिकल लेना पड़ेगा, आईआईटी को। ठीक है, नेक्स्ट, इस तरीके से अभी मुझे एनआईटी का भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पेमेंट पेड है, आईआईटी का है, तो मुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन चेंज करना है, अभी वो आपको विड्रॉ करना है, एग्जिट करना है, अलग अलग टर्म से कैंसिलेशन कर देते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो ऑप्शन। अभी आपको आईआईटी दिल्ली मिला था सिविल, आप फ्रीज करते तो ऊपर वाले नहीं होते, फिर आपको आईआईटी दिल्ली में ही सिविल एडमिशन लेना पड़ता था। अभी आपको मैकेनिकल वीएनआईटी का मिल गया, आईआईटी दिल्ली चला गया, ये प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन चूजिंग, ऑप्शन फिलिंग चॉइस, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके सर, मार्क्स है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अभी आफ्टर ऑल राउंड्स आर ओवर, फॉर आईआईटी इट इज अ 5th राउंड, फॉर एनआईटी इट इज अ 6th राउंड। तो उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ओके, उसके लिए आपको जोसा की वेबसाइट पे यू हैव टू सी द इंस्ट्रक्शंस ऑन जोसा वेबसाइट। डॉक्स क्या है, फीस क्या है, वो सब मिल जाता है। या तो ऑलरेडी आप व्यू में जाकर देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपको वैसे पहले ही एडवांस में मिल जाता है। फिर भी आई सजेस्ट कि आप ये देखो, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे एनआईटी सिलचर है, 40 से एडमिशन मिले तो हम 5 दिन क्यों चालू रखेंगे, हम 2 ही दिन रखते हैं। तो दे पुट इन नोटिस, आप दोबारा देखो कि हम 2 ही दिन रखेंगे, तो जाकर आपको वहाँ रहना है, खर्चा करना है, ऐसा हुआ है। सो यू चेक इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर रिपोर्टिंग डेट्स। ये नहीं कि जोसा गिव्स यू द रेंज, ये 10 से 12 तक या 10 से 15 तक रहेगा, और हो सकता है कि सिलचर जैसी देश में कम एडमिशन हो, दे कैन सेट 14 एंड 15। वो 12 को गए और फॉर्चुनेटली ले लिया तो ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इंस्टीट्यूट। मैं तो बोला ना, आपने नोटिस तो आपको पहले दी थी, आप रहो 14 पाओ, ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ आपको यदि एनआईटी में एडमिशन मिली है तो वो कंफर्मेशन के लिए आईआईटी में तो आपको 5th राउंड के बाद ही फिजिकली जाना है, वो सब उनके हिसाब से डेट रहता है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से। अभी एनआईटी में मिला है तो आपको इमीडिएटली फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होती एनआईटी, आपको पार्शियल एडमिशन फी देनी है। ओके, पार्शियल एडमिशन फी, और वो जो आपने 17,500 भरे उसके अलग है, उसके एडिशन ये देनी है। हाँ, वो एडजस्ट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये भरना है 20,000 और ये 45,000 इस साल बढ़ा दी है उन्होंने, ये बढ़ाया, वो कम कर दिया, एक्सेप्टेंस भी कम कर दिया, और ये पार्शियल एडमिशन भी बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यदि आप ये पे नहीं करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आपको बाद में जो 17,000 बचे थे उसमें से माइनस करके वो आपको 2-3 महीने में पैसे वापस भेज देंगे। ठीक है, आपको एनआईटी की सीट कंफर्म करना है तो पार्शियल एडमिशन फी पे करना कंपल्सरीली जरूरी है। ठीक है, कभी कभी वो ये करते हैं कि मुझे आगे रिफंड वर्ड नहीं लेना है, आई वांट टू टेक। इसके बाद अभी ये देखो, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम, हर साल हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम एनआईटी की इतनी सीटें वैकेंट रहती है आफ्टर 6th राउंड, नॉर्मली दैट एडिशनल स्पेशल राउंड्स आर कंडक्टेड। 2 राउंड नॉर्मली करते हैं, और ये राउंड सीएसए भी कंडक्ट करती है 2 साल में। तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर उसका शेड्यूल देखना है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखनी है, पेमेंट
जो भी है वो सब करना है। तो ये 6 राउंड जोसा का खत्म हो गया कि NIT और ट्रिपल IIT के एडमिशन बंद नहीं होती। उसके बाद स्पेशल राउंड्स होते हैं और मैं कंफर्म हूँ हर साल इतनी वैकेंसी रहती है कि वो राउंड कंडक्ट करना ही पड़ता है। एटलीस्ट नॉर्मली 2 राउंड करते हैं, 2 राउंड्स तो मिनिमम होते हैं। ओके, और ये तो जाने के लिए आपको IIT का वेबसाइट देख के जाना है। नेक्स्ट, अभी ये दूसरा एग्जाम्पल देखो। ओके, IIT बॉम्बे, ये मैंने चॉइस भर दी। अभी देखो मेरे को फर्स्ट राउंड में VNIT मैकेनिकल आया, ठीक है। मेरे चॉइसेस देखो, IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, VNIT इलेक्ट्रिकल, VNIT मैकेनिकल, ये सब है, IIT दिल्ली है एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी मैंने ऐसी चॉइस लिस्ट भरी है, ठीक है। अभी सब अभी मुझे मैकेनिकल मिला, दैट इज माय थर्ड चॉइस। तो मेरे सिस्टम में पूरी के नीचे वाली लिस्ट कैंसिल हो गई जिसमें IIT दिल्ली भी चला गया। So you will understand how it is important to write it preferentially. तो मेरा IIT दिल्ली चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अपलोडेड ओनली वंस, एक ही बार अपलोड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट VNIT मैकेनिकल स्लाइड कर दिया। तो स्लाइड करने पर क्या होगा, अभी देखो स्लाइड का इफेक्ट देखो। अभी मेरे 3 चॉइसेस बचे थे, IIT बॉम्बे, VNIT इलेक्ट्रिकल और VNIT मैकेनिकल, तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इट इज स्टिल देयर इन द सिस्टम एज अलॉटेड सीट टू यू। अभी जैसे ही मैंने फ्लोट स्लाइड ऑप्शन दिया, नेक्स्ट राउंड में मुझे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, बट मेरा टॉप का IIT बॉम्बे डिलीट हो गया। इट इज बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन, नॉट फ्लोट वन। तो जैसे मैं स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ VNIT वाले या जिस इंस्टीट्यूट में मुझे मिली है वही रहेंगे, ऊपर में जितने बचे उसमें से बाकी सब डिलीट होंगे। तो मेरे चॉइस ऑफ ऑप्शन से मैंने मेरे IIT बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल खो डाली है, ये इसका इफेक्ट है। इसलिए ऑप्शन भी सही तरीके से चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है देखो। ओके, और मैकेनिकल कैंसिल हो गई थर्ड राउंड में, और मुझे VNIT का इलेक्ट्रिकल, ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रिकल VNIT का मैकेनिकल था, मैंने डॉक्यूमेंट की है, NIT है तो कोई RC रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सो दिस इज द हेल्प सेंटर ऑफ VNIT। ये कैंटीन के बाजू में न्यू एकेडमिक ब्लॉक है, 6 फ्लोर बिल्डिंग है, उसमें 6 फ्लोर पे ये VNIT का हेल्प सेंटर चालू है। 10 to 5 यू कैन गो। ओके, कैंटीन के बाजू में ही है। ओके, और ये नंबर्स है, ईमेल भी है, बट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स ड्यूरिंग 10 to 5। ओके, यू कैन डू इट। Okay, and these are the head office numbers। और NIT के लिए, IITs के लिए तो अंग्रेजी है, मल्टीलिंगुअल नहीं किया है उन्होंने, बट फॉर NIT के एडमिशन यू कैन डायल दिस नंबर, और वो होता है ना, मराठी के लिए 1 दबा है, इंग्लिश के लिए 3 दबा है, दैट वे। सो यू विल गेट 9 लैंग्वेजेस देयर। हाँ, मराठी है उसमें, आप अपना लैंग्वेज से बात कर सकते हो, दैट फैसिलिटी इज देयर। या आप तो सेंटर में जा सकते हो, जैसे IIT में तो हैदराबाद में जा सकते हो, भिलाई में जा सकते हो, या नागपुर में VNIT जा सकते हो, रायपुर में हो तो NIT है, वहाँ पे आप वहाँ कोई भी सेंटर पे जाकर अपनी हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। हाँ, 1 मिनट। हाँ, इसमें आपको ये इंडियन नंबर्स आपको मोबाइल से लगाना है तो ऊपर वाले में 0 लगाना जरूरी है। एंड दिस नहीं अदरवाइज तो ये IIT मद्रास का जो नंबर है ना, लैंडलाइन नंबर, तो एनी यू पुट 0। हाँ, 0 लैंडलाइन का 0 नहीं सर, उसका 0 ही है ना, 0 आएगा। और यू कैन पुट +9 on वो पीपल आर वेटिंग मला असं वाटलं की
करू शकते. सो STD कोड R0 हे लगा, इट इज देअर.